Now, in the entire Gyanvapi dispute, if there was one argument given again and again to stop the survey and throw out the petition that has been made by the Hindu petitioners saying that they should be given access to what they claim is a shivling in the Gyanvapi complex, it is the 1991 Places of Worship Act. It has been the bedrock of petitions, arguments and opposition to the survey. Today, it saw some major cracks. While raking up the matter of leaked survey report and details, the lawyer for the Muslim side, Huzaifa Ahmadi, today said in the Supreme Court that information was being selectively put out to create a narrative and disturb communal harmony, and that it was a major act of mischief that violated the Places of Worship Act. He even asked for the survey to be stopped because it went against the 1991 Worship Act. However, Justice Chandrachud responded to this by calling for the details of the law and eventually observing that it is a nuanced act which needs consideration. But most significantly, during the exchange, the court said, and I quote, "The ascertainment of religious character is not barred. The ascertainment of religious character of a place may not fall foul of Section 3 or 4. These are matters where we will not hazard an opinion in our order." Now, while the interim orders issued today do not mention this caveat, the observation has already started a big debate. This will be a second setback to those citing Places of Worship Act to block pleas. Yesterday, a Mathura court, in a plea to remove the Shahi Eidgah Masjid, also held that the Worship Act is not applicable to the suit from 2020. If surveying a religious place to determine its character is not barred, then does it now open up doors for a rethink in similar religious dispute cases elsewhere? जस्टिस प्रकाश पाडिया के कोर्ट में यह मुकदमा लगा था। हम लोग गए, 12 बजे से हियरिंग स्टार्ट थी। मात्र आधा घंटा इस बात की हियरिंग हुई और उसमें प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट की धारा 4 इस ज्ञानवापी के संबंध में, केस के संबंध में लागू नहीं होता। इसी पर बहस हुई। Chalamani Tripathi, spokesperson and MLA of the BJP, joins us along with Anurag Naidu, author, Shoaib Jamai, president of India Muslim Foundation, and Maulana Ijaz Athar, Islamic scholar. Chalamani Tripathi, क्या अब इससे मथुरा के द्वार भी खुलेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि इस विषय पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये जो प्रकरण है ये अदालत के भीतर है। मामला विश्वनाथ मंदिर का है और तमाम सारे जो प्रमाण मिले, मुझे लगता है इस प्रमाण मिलने के बाद लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सबका एक मत बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जब कुछ लोग गए थे, बार बार हवाला दिया था और देखिए कितना क्लियर कट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वर्शिप एक्ट का मतलब ये नहीं होता किसी धर्म के बारे में कोई चीज छुपी है तो आप उसको न ढूंढने दीजिए। मुझे लगता है कि बहुत सारे सवालों का, बहुत सारे कयासों का जवाब मिल चुका है और मुझे पूरी तौर पर मुझे लगता है कि जो प्रमाण मिले हैं बहुत अकाट्य प्रमाण है, बहुत अकाट्य साक्ष्य है। कष्ट की बात यह है कि जो एक तबका लगातार भाईचारे की बात करता रहा, गंगा जमुनी तहजीब की बात करता रहा, उनकी मौजूदगी में बाबा भोलेनाथ को वजू खाने में रखा गया, यहाँ पर हाथ पैर धुले जाते हैं और ये इतने सालों तक होता आया। एक भी व्यक्ति नहीं आया जिसने कहा हो कि नहीं ये गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए, वजू खाना नहीं यहाँ बनना चाहिए। बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग है, आप दूसरे के धर्म की आदर कर सकते थे, दूसरे के धर्म का आप सम्मान कर सकते थे, लेकिन ये अपमान हुआ, अन्याय हुआ। बाबा भोलेनाथ जहाँ स्थापित थे, तो इस बात का जवाब दीजिए शोएब जमाई साहब कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सर्वे के रास्ते में नहीं आता, सर्वे बताता है वो शिवलिंग है, तो गंगा जमुनी तहजीब का आदर करते हुए क्या एक्सेस मिलनी चाहिए? क्या लोगों को महादेव दे देने चाहिए उनके? शोएब जमाई, यह सवाल है आपसे। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतिम ऑर्डर, कोई फाइनल जजमेंट तो दिया नहीं कि अभी उसकी क्या रिलीजियस कैरेक्टर है, तो उसके फाइनल जजमेंट आने से पहले आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो क्या है? उसकी जांच तो हो जाने दीजिए। अभी कह रहे हैं कि मैं बताती हूँ, उनका ये जजमेंट साफ है कि मई 17 का जजमेंट चलता है। इसमें साफ तौर पर बोला गया है कि प्रोटेक्शन विल बी गिवन टू शिवलिंग, एक्सेस फॉर नमाज विल नॉट बी बार्ड। पर जहां पे ये बोला गया था कि आप सर्वे को रोकिए, उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं रोकेंगे क्योंकि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को वायलेट नहीं करता। सिंपल सी बात है। I'm answering to the allegations labeled by Chalamani Tripathi कि मुस्लिम समाज जो है वो उसको मालूम था कि ये है वो। अरे भाई नहीं,
वो एक वजूखाना एक फाउंटेन के हिस्से के हवाले से इतने सालों से चलता आया, और आपके काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व जो महंत है सर, अब पुरानी बहस में नहीं पड़ेंगे ना। आज की बहस ये है कि कोर्ट ने सर्वे को खत्म नहीं किया, सर्वे में कहा गया ये शिवलिंग है, क्या उसको आप डेवोटीज को दे देना चाहिए? हाउ कैन यू डिसाइड कि अभी उसको दे देना चाहिए? जब इफ द मैटर इज सब judice, let the court will decide. No, this was only the question posed was more of an ethical question कि अब जब आपको पता है कि वो शिवलिंग है तो क्या उसको आप हैंड ओवर कर रहे हैं? सब जुडिस तो है। एथिक्स तो वहां चलता है जहां पर इनका पेंडोरा बॉक्स नहीं होता। एथिक्स वहां चलता है कि एक दो मस्जिदों की बात है, जैसे काशी, मथुरा और अयोध्या की बात थी, लेकिन वो बात तो है नहीं। वहां तो संवाद की गुंजाइश भी है, लेकिन जो कभी ताजमहल, कभी कुतुब मीनार, कभी जामा मस्जिद, कभी लाल किला, कभी वो नीमच में एक मस्जिद है नॉर्मल सी, उसके बाहर यहाँ से मूर्ति रख दी और कह रहे कि भाई ये हमारा स्थल है। कोई मजार तोड़ करके वहां पे दूसरी जगह हरियाणा में उसको कह दिया ये हमारा, तो ये तो कंटिन्यूअस लॉन्ग एंड गो चल रहा है। मनी त्रिपाठी, तो इस वर्शिप एक्ट बहाना है, आपको बेसिकली नफरत फैलाना है। अब नीमच से लेकर के नोएडा तक हर जगह आपको मंदिर दिखेंगे। ओके, आई थिंक यू आर म्यूटेड। शलभ जी, आई थिंक आपने अपना ऑडियो म्यूट कर रखा है। अभी आवाज आ रही है? आ रही है जी, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इतिहास को आने दीजिए ना, इतिहास सामने आने में क्या बुराई क्या है? अगर एक क्रूर इतिहास रहा है, बर्बर इतिहास रहा है, इतिहास से किसी कालखंड में इतना अत्याचार हुआ है, आप क्यों चाहते हैं वो सामने ना आए? मतलब मारिएगा भी, बेइज्जत भी करिएगा, अपमानित भी करिएगा, और हमारी पीढ़ी उसको जाने भी ना कि हम किसी कालखंड में अपमानित हुए हैं, हमारे साथ अत्याचार हुआ है। ये भला कौन सा न्याय हुआ? और वर्शिप एक्ट का बार बार हवाला क्यों देते हैं? दो चीजें हैं, या तो मान लीजिए कि नहीं बिल्कुल बहुत बड़े पैमाने पे मंदिर तोड़े गए, वहां पर मंदिरों को ध्वस्त किया गया, लूटपाट की गई, और इसके चलते आप चाहते हैं कि वर्शिप एक्ट है, और नहीं तो आप बोलते नहीं तोड़ा गया, कुछ नहीं हुआ, कोई लूटपाट नहीं की, तो वर्शिप एक्ट का बार बार हवाला क्यों देते हैं? दोनों बातें मत कीजिए। वर्शिप देना चाहूंगा मौलाना, हाँ, हमने तोड़ा है, हमारे लोगों ने बर्बाद किया है, लूटपाट किया है, और इसलिए हम चाहते हैं त्रिपाठी सामने ना। पद्मजा, हाँ जी पद्मजा, सी देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। इतिहास में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स बहुत कॉम्प्लेक्स है। वहाँ बुद्धों का भी इतिहास रहा कि कई बुद्धा स्तूपा को तोड़ के मंदिर बना दी गई। कई इतिहास ये है कि जो जयसिंह थे। सर, ये आप एनेक्डोटल एविडेंस दे रहे हैं। हम तो आपको जो सर्वे चल रहा है, जो सर्वे को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका, जिसकी तस्वीरें दिख रही हैं, उसके आधार पे बात कीजिए ना। आप करवा लीजिए सर्वे, जो बुद्ध वाले मॉन्यूमेंट्स हैं उनके। अभी आप मुद्दे पे रहिए। 1947 के बाद जब ये देश आजाद हुआ और जब यहाँ से हम रिपब्लिक बनाए और संविधान बनाए, तो हमने यही तो तय किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट के तहत चलेंगे। और तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का एम्बिट नहीं है ना सर। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन या वर्शिप एक्ट एक ऐसे सर्वे को नहीं रोकता, सर्वे हो रहा है, ठीक है। मैं तो सर्वे को रोक भी नहीं रहा हूं, मैं तो किसी चीज को नहीं रोक रहा। मैं तो उस बात का जवाब दे रहा हूं। शलभ मनी जी भाई का विधायक भी बने, मैं उनको बधाई भी देता हूं कि भाई मैं उस बात का जवाब दे रहा हूं कि इतिहास में कालखंड में हुआ, अरे क्या हुआ नहीं हुआ वो सबको पता है। इतिहास बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अब जो हम जी रहे हैं वो तो संविधान के एम्बिट के तहत जी रहे। आप कितनी कब्रें खोदेंगे, कितनी कब्रें खोदेंगे, जाएंगे भविष्य के बारे में। सी द थिंग इज फ्यूचर लाइज इन द हैंड्स ऑफ यूथ ऑफ द कंट्री। अगर हम फ्यूचर की तरफ बात नहीं करेंगे, हमारा रोड मैप आगे के लिए नहीं होगा। मैं समझता हूँ इतिहास की कब्रें खोदते खोदते हम इस के भविष्य की कब्र। Okay, respond to that, Anurag Naidu. Now it is not about places of worship act. Now it is about how many graves, how many skeletons will you dig up from the past. कितनी कब्रें खोदेंगे है ना, ये नेताओं का भाषण है। ये इट इज अ पॉलिटिकल लाइन, एंड ऐसा कर करके ना मिस्टर ओवैसी जैसे लोग, जो हमारे जेंटलमैन है पैनल में, ऐसे लोग, दीज आर द पीपल हु आर ट्राइंग टू इंसाइट वायलेंस एंड इंस्टिगेट पीपल। क्योंकि क्या हो रहा है अयोध्या में, द काइंड ऑफ वायलेंस वी नेवर सॉ दिस काइंड ऑफ वायलेंस इन ज्ञानवापी, और नॉर आर वी seeing in Mathura. So everything is going peacefully. There is a petition in the court. Court is hearing the matter because they see that there is a substance. You know the beauty about debate these days, Padmaja. By and large, everybody agrees that there was persecution with the Hindus. There was demolition of about 40,000 temples in India, and all they are saying is, "अरे भैया भूल जाओ." अरे हम कभी ये नहीं बोल रहे कि हम नहीं चाहते कि मस्जिद गिरे। हम ये चाहते हैं कि let us discover whether we had a deity or not. What is our belief? We believe the temple is a home for our deity. Do you believe that masjid is a home for Prophet? So are you saying that? Are you
saying that this situation now lays the ground for other such disputes also being raked up? Oh, absolutely. Why should it not? If it is So about, Jamai is saying, why are you doing it? उससे क्या हासिल हो जाएगा? 3 टेम्पल ले लेंगे, 300 ले लेंगे, 30,000 ले लेंगे, क्या फायदा होगा आपको? How will you gain? The point is we don't want to take the masjid and we don't want. The point is we want to educate ourselves, educate the next generation, the youth of India on what happened, and we also need to understand the spiritual belief of millions of people in Kashi is attached to the Gyanvapi mosque, the Shivling. 70 years Congress leaders was Hindu, TMC leader was Hindu, Samajwadi Party leaders were Hindu. All the 65% who did not vote to the BJP was Hindu. They did not know about the history. What was then? आपको कहना है कि आप ही एक हिंदू है, बाकी जितने सेकुलर पार्टी में जो हिंदू है वो हिंदू नहीं है। Sir, I don't want to. नहीं कर रहे ना। I don't want to go into vote bank. हिंदू इसी देश में रह रहे थे। सर वोट बैंक की बात है। वोट बैंक की बात है, सबको पता है कि कौन किसे वोट करता है। सर वोट बैंक की बात नहीं है। अगर चुनाव की बात होती तो ये 6 महीने पहले हुआ रहता, ना कि अभी। चुनाव की सर आप यूपी में है सर, चुनाव की बात होती है, राजनीति की बात होती है, ये चीज 6 महीने पहले होता, ना कि अभी। और अभी कोई चुनाव यूपी का है नहीं सर 6 महीने बाद। So it is not about politics, it is about intent. And some gentleman who is representing one society or a group of people went to the Supreme Court or the District Court and made an appeal. What is your problem, sir? And the court has admitted it. Court को तकलीफ नहीं है, आपको तकलीफ है कि आप क्या चाहते हैं कि you don't want the law to perform. No. You don't want the law to take. Nobody has objected to the. Okay, Shalabh Mani Tripathi, the second argument that is now being given, ठीक है, चलिए Places of Worship Act अभी नहीं सर्वे रोका सुप्रीम कोर्ट ने, but to say कि हमें शिवलिंग दे दीजिए, why are you bypassing the legal process? कोर्ट में चल रहा है मामला। अभी तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी चैलेंज किया गया है, अभी फिर काशी में भी होगा, मथुरा में भी होगा, 100-200 साल चलेगा ये मामला, चलने दीजिए। आपने बुलाया नहीं, आप इन्हें शांत करेगा तो अपनी बात रखूंगा। इसी पे चर्चा करते रहते हैं। शलभ मनी ऐसा त्रिपाठी, नहीं है कि दिन भर पूरे लोग चर्चा आप मुझे एक बात बताइए, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए प्लीज, मुझे बोलने दीजिए। मैंने आपको बोलने दिया, मैंने आपको टोका नहीं, बोलने दिया मुझे एक बात बताइए प्लीज, बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ कि डेनमार्क में कार्टून छपा, आपको याद होगा, डेनमार्क के एक बहुत अनजान से अखबार में कार्टून छप गया। उस कार्टून छपने का जो बदला लिया गया, उत्तर प्रदेश और देश भर की सड़कों पर खून बहा कर लिया गया। महात्मा बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी गई, भगवान जैन की मूर्ति तोड़ दी गई, ये कहते हुए कि डेनमार्क के अखबार में कार्टून छपा है पैगंबर साहब का, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जरा कल्पना करिए कि धैर्य कितना है, कितना सम्मान है, कितना अनुशासित है ये समाज, ये जानने के बावजूद कि बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग को आपने कहां पर रखा हुआ है, और मैं क्यों ना मानूं कि आपने जानबूझकर रखा हुआ है। एक बच्चा ही बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग को पहचानता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ये जानते हुए आपने वजू खाने में रखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या अपने धर्म के किसी पैगंबर को आप वजू खाने में रख सकते थे? आप पैगंबर साहब को वजू खाने में रख सकते थे क्या? लेकिन क्यों, मुझे बोलने दीजिए, लेट मी फिनिश। लेकिन आपके अंदर कितना, आपके अंदर घृणा भरी है। मैं बहुत विनम्रता से हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मुझे इस बात का कष्ट है कि हम लोग गंगा जमुनी तहजीब की बात करते रहे और हम सब उसे विश्वास करते रहे, भाईचारे विश्वास करते रहे, लेकिन एक ना, मुझे लेट मी फिनिश। लेकिन आपके समाज से एक व्यक्ति ऐसा नहीं आया जिसने कहा कि नहीं साहब ये गलत हो रहा, नहीं होना चाहिए। बाबा भोलेनाथ है, चलो लड़ाई चल रही है, इसको लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है, लेकिन नहीं करना चाहिए हमें वजू। आज कोर्ट को कहना पड़ा कि नहीं वजू खाना वहां पर अभी नहीं खोलेंगे, हम वैकल्पिक व्यवस्था करें। ये घृणा कहां से लाते हैं? मौलाना अतहर, इन द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनल हार्मनी, अब जबकि कोर्ट ने सर्वे नहीं रोका, जब कोर्ट ने वजू खाने को सील कर रखा है, इन द इंटरेस्ट ऑफ गंगा जमुनी तहजीब, शुड द प्लेस ऑफ वर्शिप बी गिवन और एटलीस्ट एक्सेस बी गिवन? मामला ये है कि कर नहीं तो डर कहेगा, हमने कुछ किया ही नहीं है तो हमको डर कहेगा है। एक बार ये सर्वे कीजिए, वीडियोग्राफी कीजिए, आकर के हमने मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई है। कभी मंदिर तोड़ के, कोई भी इबादतगाह तोड़ के, कोई भी जगह तोड़ के जबरदस्ती मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है। इस्लाम इसकी परमिशन नहीं देता है। अगर कोई ऐसा करे तो न वो मस्जिद कहलाएगी, न वहां पर होने वाली इबादत कहलाएगी। हम तो इस बात को मानते हैं। ये आपने बहुत उम्दा बात कही है, पर अगर सर्वे बोल रहा है, कोर्ट द्वारा कराया गया सर्वे बोल रहा है कि वहां पर अनमिस्टेकेबल शिवलिंग लाइक स्ट्रक्चर हैज बीन फाउंड, वो जगह तो एनीवे सील पड़ी हुई है। अब तो कोर्ट ने बोला ही है कि 4 हफ्ते तक हमारा ऑर्डर रहेगा, मई 17 वाला ऑर्डर। तो आप ये कहेंगे इन इंटरेस्ट ऑफ हार्मनी वहां पूजा होने दीजिए?
देखिए एक था तो कल सर्वे कमिश्नर साहब ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, उसके अंदर उन्होंने ये नहीं लिखा है कि ये शिवलिंग नहीं है ना, और वो अब दावा कर रहे हैं, एक दावा कर रहा है कि दूसरा दावा कर रहा है। अब मामला कोर्ट में चला गया दावा है, दो तरफों का नहीं है, अब एक रिपोर्ट का है, एक रिपोर्ट का है। और बाय द वे आज कोर्ट में यह भी बोला गया कि इस रिपोर्ट को रोका जाए, इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया जाए। अगेन द सुप्रीम कोर्ट सेड इट इज नॉट फॉर अस टू डिसाइड द मेंटेनेबिलिटी ऑफ अ सूट। हम नहीं ये डिसाइड कर सकते कि वो अपील में आ सकता है कि नहीं। और इस रिपोर्ट में सर सिर्फ शिवलिंग की बात नहीं है, इस रिपोर्ट में यह बोला गया है कि गुंबद के नीचे शिखर है। इस रिपोर्ट में बोला गया है कि तहखाने में 4 ऐसे खंबे हैं जहां पर त्रिशूल और स्वास्तिक बने हैं। देखिए ये तो वीडियोग्राफी है ना मैडम, ये सब तो अभी वीडियोग्राफी हुई है। अब कोर्ट इसके आगे फर्दर स्टेप लेगा, कोर्ट इसके एक्सपर्ट्स को बुलाएगा, वो तो होगा। पर शलभ मणि त्रिपाठी और अनुराग नायडू ये कह रहे हैं कि या तो ये मामला कोर्ट के जरिए हो सकता है या सच में गंगा जमुनी तहजीब को ध्यान में रखते हुए एमिकेबली हो सकता है। क्या इसका एक एमिकेबल सोल्यूशन भी है? अब जबकि ये सबूत सामने है। बेशक सोल्यूशन है, क्यों नहीं एमिकेबल सोल्यूशन है? एमिकेबल सोल्यूशन ये कभी दरवाजे बंद नहीं होते। बाबरी मस्जिद के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप एमिकेबल सोल्यूशन कर लीजिए, एमिकेबल सोल्यूशन अफसोस है कि वो नहीं हो पाया। शलभ मणि त्रिपाठी, आपको गंगा जमुनी तहजीब की पड़ी है तो फिर आप दे दीजिए, आप अपना हक छोड़ दीजिए। देखिए मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि आप देखिए यहीं पर 2 भाई हमारे 2 तरह की बात कर रहे हैं। एक हमारे भाई कह रहे हैं कि ठीक है इतिहास बहुत ही उलझा हुआ है, छोड़ दीजिए उस पर, इतिहास से बात ही नहीं करनी चाहिए, क्या हुआ कालखंड में छोड़ दीजिए। दूसरे भाई कह रहे हैं कि नहीं साहब हमने कोई नहीं तोड़ा, हमने कोई दूसरा धर्मस्थल तोड़कर नहीं बनाया। मुझे लगता है आपकी उम्र कितनी होगी, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 55 साल, क्या हुआ पूरी दुनिया को पता है। देखिए झूठ मैं बोलूंगा, आप बोलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो सिर्फ इस बात को लेकर अफसोस में हूं कि आज आप सुप्रीम कोर्ट तक ने उस जगह को कहा है कि नहीं इस जगह को डिस्टर्ब मत कीजिए। मुझे बोलना चाहिए कि आपने देखिए इतनी शराफत दिखाई है, मैं आपकी बहुत शराफत से डिबेट चल रही है, हाथ जोड़ के कह रहा हूं बोलने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि नहीं साहब उस जगह को लेकर भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पर वजू खाने को लेकर कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग है, उसको सुरक्षित रखने का आदेश सही है। आपको इसके बाद भी अफसोस नहीं होता? इस देश में आजादी को 70 साल हो गए और 70 सालों में हमने कहा कि हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। आप मुझे एक बात बता दीजिए कि यही अगर आपके धर्म के किसी पैगंबर के साथ कहीं हुआ होता, आज क्या हो रहा होता? एक कार्टून बनने पर तलवार निकल आता है, खून की नदियां सड़क पे बहा देते हैं। बाबा भोलेनाथ के साथ क्या किया आपने, और आपको आज भी इस बात का एहसास नहीं है कि आपने कितना बड़ा महापाप किया हमारे आराध्य के साथ। Okay, I'm going to leave it at that. We've put all the viewpoints in front of you and we've put the facts, the bare facts of what was argued before the court and what the Supreme Court opined. But the biggest takeaway and the really landmark judgment that may have happened today, or the observation by the Supreme Court on how the Places of Worship Act is to be interpreted and how it doesn't stand in the way of the character of a place of worship being surveyed. Let's see where this takes us. Thank you very much, all gentlemen, for joining me.